There are some following instruction for the quiz that मैं नॉर्मल 1 मार्कर या उससे ज्यादा वाला कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो जो सबसे पहले आंसर देगा उसका 1 मार्क काउंट हो जाएगा. ओके, आफ्टर 35 मिनट्स, ओके, आई विल डिक्लेयर द रिजल्ट. ये सबसे ज्यादा मार्क्स किसके बनेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट एंड रेस्पेक्टिव पोजीशन सेकंड एंड थर्ड कैन बी डिक्लेयर्ड. ओके, so we are waiting for just 1-2 minutes. After that we'll start the quiz. The quiz is totally based on, yes, good morning everyone, that is totally based upon chapter first, second and third, and most of the questions are not directly copied from the book. Okay, तो क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्टली सेम नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी सोचना मत. यस, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकता है, तो मैं फिर स्टार्ट करने वाला हूँ. यस, good morning everyone. Okay, so I'm going to start the quiz now. So the first question is, what is additive identity? तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका. What is very good. तो लेट मी चेक, सबसे पहले आंसर किसका है. Sanvi Nanpal has given the answer. तो ये पॉइंट जाता है सानवी नागपाल को. Okay, and this way there is second question. तो बिल्कुल ध्यान से अब सुनना. That is x plus multiplicative identity. Identity is equal to what? जिसका अगर एक बार क्वेश्चन गलत हो गया वो उसके बाद नहीं काउंट होएगा. One is the wrong answer. Okay, किसी को आता है तो जल्दी करिए. You just have some seconds left. I'm repeating my question. X plus multiplicative identity equal to what? Yes, very good. एक आंसर सही आ गया है. तो सबसे पहले 1 वाले आंसर थे, तो these are the wrong answers. तो सबसे पहले Priya from 8th Lotus has given the right answer. That is x plus 1 is the right answer. Okay, तो I hope सबको क्लियर भी हो गया होगा ये क्या है. x तो वैसे का वैसे रहना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू फिल करनी थी. That is x plus 1 is the right answer. So that is given by Priya. Okay, now I am moving to the third question. तो अब सॉल्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया है. -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 30/32 मल्टीप्लाई -28/18. What would be the right answer of this? जल्दी से सॉल्व कीजिए, प्रॉपर सॉल्वेशन होनी मस्ट है. जल्दी से सॉल्व करिए बच्चे, प्रॉपर सॉल्वेशन कॉपी पे होनी चाहिए और मेरे को राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा.
Very good. Arman has given the right answer. The right answer is 1 upon 2. क्लियर? तो आप सब इसको सॉल्व करवा के देख लेना. 1/2 will be the right answer. Okay. So I'm moving to the next question. That is 6 upon 15 multiply minus 3/7 minus 1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply 6/15. इसको प्रॉपर प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करिए. हरी अप. Please don't do like this. You are just copy pasting one another's answer, and even though this answer can also be wrong, do it by yourself. Yes, Snaya has given the right answer. The answer would be minus 11 upon 28. So let me check. Yes, the right answer is minus 11 upon 28. The right answer given by Snaya. Very good. Now we will move to the next question. Yes. Which property? You just have to tell the property. That is 2/7 multiply 3 plus 5 is equal to 2/7 multiply 3 plus 2/7 multiply 5. Yes, I think Priya has given the right answer. The right answer is distributive property. Okay, so let me check. Firstly, yes, Priya from 8th Lotus have given the right answer. This is not the associative property. You must know in the associative property there are, yes, this is a distributive property. Associative property is something else. This is being given by Priya. The answer is distributive property.
Next, the multiplicative inverse what is the multiplicative inverse of 2 by 7 multiply minus 3 by 5? Hurry up, do it fast. 2 by 7 multiply minus 3 upon 5. What is the multiplicative inverse of this? Yes, the right answer firstly has been given by Amira. Very good. Minus 35 upon 6. Seventh question. Give the answer of it. Name the rational number that does not have reciprocal. Yes. 0. 0 does not have its reciprocal. Let me check. किसने सबसे पहले आंसर दिया है and that has been given by यशप्रीत. यशप्रीत देखिए, अब अगर कोई भी मैसेज कर रहा है तो वहां प्राइवेटली मत करिए प्लीज, उसको चैट में जाके चेंज करिए टू एवरीवन. ओके, क्लियर. अभी जिसके जितने जितने नीचे मार्क्स बन रहे हैं मैं लिख रहा हूं और फिर मैं बोर्ड को इरेज कर दूंगा. अरमान, डोंट थिंक अबाउट इट, आई हैव द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इट. आप वीडियो में बच्चे चेक कर लेना. यशप्रीत ने मेरे को प्राइवेटली सबसे पहले भेजा था, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में इजीली देख सकते हो. ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचे कि मेरे लिए सभी एक बराबर हैं. ठीक है, तो मेरे को जिसका पहले मैसेज आएगा तो मैं उसी का नाम लूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, तो किसके कितने कितने मार्क्स हैं? तो सबसे पहले देखिए, सानवी have 1 mark, Priya have 2 marks, Arman Nangpal have 1 mark, and Snaya have 1 mark. Amira and Yashpreet also have 1 mark. Okay. Now we will move to the chapter second. So get ready for the chapter second. As we have done 7 questions, this is the 8th question. Solve 2x minus 1 is equal to 3 by 2. 2x minus 1 is equal to 3 by 2. जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको. देखते हैं सबसे पहले कौन कर पाता है. Yes, very good.
I think 5 by 4 is the right answer. Clear? Yes, 5 by 4 is the right answer and it is given by Snaya. Solve 9x minus 3 by 2 is equal to 9x minus 3 by 2 is equal to 9 ब्रैकेट में 2x minus 1. अच्छे से सॉल्वेशन करिए बच्चे प्लीज. डोंट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड. Yes, some students are giving the right answer. फाइव बाई सिक्स जो सबसे पहले फिर स्नाया ने दिया है, 5 by 6 would be the right answer. तो आप इसको चेक करके देख सकते हो, 5 by 6 सबका आंसर आ जाएगा. ओके, 10th क्वेश्चन. That is 5x plus 7 by 2 is equal to 3 by 2x minus 14. इसका आंसर दीजिए. Yes, still Snaya has given the right answer. The answer is minus 5. Very good. The answer is minus 5. बाकी भी अपने आंसर चेक कर लीजिए. -5 सबका आंसर आना चाहिए बच्चे. नेक्स्ट करिए. Riya is twice as old as Priya. Okay, Riya is twice as old as Priya. 5 years ago,
5 years ago, her age was three times Priya's age. Find their present ages. करिए जल्दी से. Yes, 10 and 20 would be the right answer. Amira, please. आप प्राइवेटली मैसेज मत करो, टू एवरीवन मैसेज करिए, फिर सबको पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या है. वैसे मैंने सबसे पहले इसका आंसर दिया है. द एजेस आर 10 and 20. Okay. Next question you have to do is सॉल्व करिए इसको. 2x plus 3 upon x plus 5 is equal to 7 upon 6. Yes, 17 by 5 is the right answer. तो देखते हैं, पहले किसी ने 17 by 5 आंसर नहीं दिया. सबसे पहले अबीर का आंसर आया हुआ है 17 by 5. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व भी करा सकते हो, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था. 12x plus 18 क्या बन जाना था इधर. 12x plus 18 इज इक्वल टू 7x plus 35. ये उधर जाके 5x रह जाना था, उधर 17x इज इक्वल टू 17 by 5. इन दिस वे ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हो सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 13. x plus 1 upon 2x plus 3 is equal to इसको सॉल्व कराइए.
Yes. Still, Abir has given the right answer. The answer is 1/2. Yes, 1/2. इसको देखो, एक तो बड़ा मेथड बन जाना था 64 को पूरे से मल्टीप्लाई, 24 को पूरे से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग हो रही है, दोनों 8 के टेबल पे जा रहे हैं ना, 8 3 आर 8 8 आर 3/8 के साथ एडजस्टमेंट करनी बड़ी इजी हो जानी थी। तो सेकंड चैप्टर के मैं ऐड कर देता हूँ नीचे नंबर, जो नए पर्सन आए हैं उनका भी कर देते हैं। स्नाया के 3 राइट आंसर है। ओके, उसके बाद 1 मार्क हैज बीन गिवन, तो ये दोनों नए हैं। तमन्ना, तमन्ना क्या 1 मार्क है। अबीर के कितने मार्क्स हैं? 2 मार्क्स हैं। वेरी गुड, स्टूडेंट्स आर डूइंग रियली वेल। तो आप चलते हैं चैप्टर थर्ड पे। नेक्स्ट, thirteen question has been done. This is the question number 14. Find number of sides of a regular polygon each interior angle is 90 degree. Very good. Priya has given the right answer. Answer is 4. क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। ये तो सिंपली ऑब्जर्वेशन से भी आप देख सकते थे। ईच एंगल 90 किसका होता है? स्क्वायर का होता है ना। तो स्क्वायर की कितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं? 4 होती है ना। आप चाहो तो फॉर्मूला में पुट कर लो, चाहे ईच इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, चाहो आप तो ईच यहाँ से पहले एक्सटीरियर निकाल के फिर 360 से डिवाइड करवा लेते तो भी 4 आ जाना था। तो दैट इज शुभम, दैट इज 360 अपॉन 90, नॉट 90 अपॉन 360। ओके, नहीं, उससे पहले अमायरा, उससे पहले तमन्ना का आंसर आया हुआ था 10, उसके बाद 20 लिखा हुआ था। देखिए पूरी वीडियो है बेटा, आप चेक कर लेना वीडियो में चाहे, ठीक है। उससे पहले आंसर आ गया था, जब क्वेश्चन जस्ट फिनिश ही हुआ था, साथ ही उसका एक्स 10 आ गया था। उसके एक 5-7 सेकंड के बाद 20 आ गया। आप वीडियो से चेक कर लेना, फिर भी कंफर्म कर सकते हो आप। ओके, तो अभी नेक्स्ट, फाइंड number of diagonals of regular deca. Yes, बताइए। Find the number of diagonals of regular decagon. Please read the question carefully. अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया। I have asked. Yes, Amira, right answer given by you. 35 is the right answer. यहाँ पे हमारे को फॉर्मूला लगाना है n into n minus 3 upon 2। ठीक है, n की वैल्यू है 10, तो 10 into 10 minus 3 upon 2 करेंगे तो आंसर वुड बी 35। दैट इज गिवन बाय अमायरा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। What is
concave polygon. व्हाट इज कनकेव पॉलीगन? कनकेव पॉलीगन का एक भी फीचर बता दीजिए, मैं 1 मार्क दे दूंगा उसको. This is not the way of doing. हाँ, वन एंगल देखते हैं परफेक्ट आंसर किसका है. यस, तो पहला बिल्कुल सही आंसर इग्नोर कंबोज का बिल्कुल मेरे को सही लगा है. मोर देन 180 का है, बट मेरे को सही प्रॉपर जो वर्डिंग है दैट इज फ्रॉम इग्नोर कंबोज. वन एंगल इज मोर देन 180. ओके, तो वन एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल. तो इसका आंसर आपको समझ लग गया. ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, किसी बच्चे ने मेरे से फॉर्मूला पूछा था, ये फॉर्मूला लिख लो डायगोनल का. n into n minus 3 upon 2. Okay, please write down the formula n into n minus 3 upon 2. यस, पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला बताया n into n minus 3 upon 2. ओके, तो ये कनकेव पॉलीगन का भी आपको पता लग गया है. नेक्स्ट, what is the minimum interior angle possible for regular polygon? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा. यस, मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल. सो 60 वुड बी द राइट आंसर. करते हैं, सबसे पहले 60 आंसर किसने दिया है? सानवी नागपाल हैज गिवन द राइट आंसर. सबसे पहले 60. क्वेश्चन नंबर 18. Name the quadrilateral whose diagonals perpendicularly bisect each other. जल्दी बताइए मेरे को, कौन से ऐसे हैं? एक नहीं बताना है. नेम द क्वाड्रिलेटरल्स. दोनों बताइए, एक आंसर में दोनों होना चाहिए. एक कमेंट में दोनों आंसर करिए प्लीज. तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज मेरे को एक आंसर कहाँ से देखना है. तो सबसे पहले जिसने एक ही आंसर में दोनों लिखे हैं, rhombus and square is the right answer. Shubham has given the right answer. Very good. The answer is rhombus and square. It has been given by Shubham from 8 rows. Let me check कितना टाइम पड़ा है. आई थिंक टाइम होने वाला है 1 लाख. हाँ, वो आपकी बात सृष्टि बिल्कुल ठीक है, बट मैंने उसी को काउंट करना था जो एक ही बारी में दोनों आंसर देगा, है ना. मैंने पहले ही ये बताया था, क्वेश्चन खत्म होते ही बोला है एक ही कमेंट में दोनों आंसर दीजिए. ठीक है, इसका मतलब क्वाड्रिलेट. देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स इसीलिए डाला है बिकॉज इट कैन बी मोर देन वन. यस, the measures of adjacent angle
of parallelogram are in ratio 2:3. Find largest angle. ध्यान से इसका आंसर देना, कुछ और आंसर आया मैंने रॉन्ग कर देना है, ऐसा बुक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लीज तो बुक में से फाइंड करने की कोशिश मत करिए, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करिए। यस, 108 इज द राइट आंसर। तो लेट मी चेक, ये सबसे पहले 108 किसने आंसर दिया है? 108 सबसे पहले स्नाया ने आंसर दिया है। तो इस तरह ऑलमोस्ट टाइम भी होने वाला है, 108 एंड इट हैज बीन गिवन बाय स्नाया। आई होप सबने एंजॉय करा होगा क्विज को, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चों के राइट आंसर्स रहे हैं, बस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का फर्क रह गया, ठीक है। किसी का 1 सेकंड पीछे रह गया, आगे रह गया, तो करके कोई आगे पीछे निकला है। तो जल्दी से इसको एड अप कर लेते हैं, तो मैं रिजल्ट जो है इसका जो रिजल्ट है ना, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। प्रिया का एक और आंसर इसमें ऐड है, तो प्रिया के हो गए 3 मार्क्स। ओके, उसके बाद अमायरा का एक आंसर और ऐड है, तो अमायरा के 2 मार्क्स। आफ्टर दैट एक नूर कंबोज का भी 1 मार्क्स ऐड है, और एक शुभम का भी ऐड है। एक नूर कंबोज का सानवी नांगपाल का एक आंसर ऐड है, और स्नाया का भी 1 नंबर ऐड है। तो आई थिंक जो फर्स्ट पोजीशन गिवन टू स्नाया, स्नाया के 5 मार्क्स हैं। सेकंड नंबर पे है प्रिया विद 3 मार्क्स, और जो थर्ड पोजीशन है वो 3 बच्चों की सेम है, अबीर, अमायरा एंड सानवी। तो वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा किया है। तो लेट मी वेरीफाई दिस, 2 + 3 5, 5 and 5 10 and 1 11, 11 and 3 14, 14 and 5 19 क्वेश्चन हुए और टोटल 3 मार्क्स।